हाय माय डियर क्लास 10th। आज है बारी लास्ट पार्ट ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की, जिसमें हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। अब ये वाला जो पार्ट है ये इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से मैक्सिमम केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स जस्ट गेट ऑन विद क्लोरल्कली प्रोसेस। क्लोरल्कली प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। क्लोरल्कली प्रोसेस हम इसलिए करते हैं सो दैट वी कैन फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर अल्कली। सो क्या समझ में आ रहा है इस वर्ड से? क्लोर alkali. Chlor means chlorine, alkali means any base, and the base which is going to be here is sodium hydroxide. ठीक है? So how does chloralkali process occur? We have a container. In the container we are going to add a mixture of salt plus water, NaCl plus H2O. Salt plus water together are called brine solution. Brine solution. ठीक है? Then we are going to put in two electrodes here. Electrodes here are made up of graphite. तो ये हमारे दो electrodes हैं. एक है हमारा cathode, which is negatively charged, and the other one is anode, which is positively charged. So the moment NaCl and water combines together electrically, अब ये दोनों connected भी हैं with all the circuit things. स्विच हो गया, बैटरी हो गई, ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट। द मोमेंट द प्रोसीजर स्टार्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू होगी, इंस्टेंटली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस along with that, now see, since hydrogen is electropositive in nature, so hydrogen will become a gas and starts evolving from the cathode because it is positively charged, electropositive, and cathode is negative. So hydrogen is going to go and get evolved from the cathode, and chlorine will start getting evolved from the anode. Since chlorine gas is electronegative in nature, it will start passing through the anode. Okay, so what is the complete equation? I'm going to write this equation here. NaCl plus H2O is going to give us NaOH plus Cl minus, chlorine gas plus hydrogen gas. So these are the two gases which are formed, and this is the alkali which is formed here. So that is how we are forming sodium hydroxide. I am explaining this experiment one more time. What are we doing? We are taking a container in which we are adding salt plus water, which is also called brine solution. In the combination of salt plus water, we are putting in two electrodes, cathode and anode. Cathode is negatively charged, anode is positively charged. After passing the electricity for 15 to 20 minutes, we are going to observe that there is a formation of sodium hydroxide along with the release of chlorine gas and hydrogen gas. The chlorine gas, which is highly electronegative, is going to pass through the anode, which is positive, and since hydrogen is electropositive, it is going to pass through the cathode, which is negative. Got my point? The entire equation is this. Now here in this solution, along with this, there will be formation of hydrogen ions and chlorine ions. But you need to make sure that you remember this equation. Are we clear till here? Please note this thing down and let's move forward. अब इसमें क्या होता है, सारे ही important compounds जो जो आप बनाएंगे, you need to know their importance, their uses in the normal life. So you should be knowing that sodium hydroxide is actually widely used in making soaps, detergents, and all the shower gels. जो भी चीजें हैं alkaline which you use on your body for washing are made up of sodium hydroxide only. The second thing which we are going to make here is bleaching powder. How do we make bleaching powder? Now, first thing that we made was what? NaCl plus H2O gave us NaOH plus Cl2 plus H2. ठीक है, ये हम बना चुके हैं. सेकंड पे आ जाइए. अब ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे हम. ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? ब्लीचिंग पाउडर के लिए what are we going to do? We are going to pass chlorine gas from slaked lime. CaOH whole twice में chlorine gas pass कर देंगे. It is going to form a CaOCl2, which is called calcium oxychloride, also called bleaching powder. Bleaching powder.
along with water. So this is the second important thing that we made. Now what is bleaching powder? It is nothing but a disinfectant. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो या कैसी कोई भी स्विमिंग पूल हो जिसमें कि हमें क्लीनिंग करनी है, डिस्कलरेशन करनी है, वहां पर हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं. अगर किसी भी जगह में गंदा येलोविश या डर्टी वाटर है, अगर हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, it is going to remove the color of the water. First thing, it is also going to kill the germs. That is why we call it disinfectant. Got my point? So that is why bleaching powder is important. Now bleaching powder is also used in paper industries, linen industries and leather factories, ताकि उन सारी चीजों को डिसइंफेक्ट प्लस डिस्कलरेट किया जा सके. प्लीज रिमेंबर, मैं एक ट्रिक बताती हूँ यहाँ पे. यूजेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जितने भी कंपाउंड्स बनाने वाले हैं उन सब में एक यूज कॉमन रहेगा. दैट यूज इज यूजिंग इन कॉटन इंडस्ट्रीज, लिनन इंडस्ट्रीज एंड लेदर फैक्ट्रीज. दिस इज कॉमन. अगर पेपर में जाओ और यूज याद ना आए, देन यूज दिस पॉइंट. Got my point? So this is the second thing that we made. Let's move on to the third. We are going to make baking soda. Baking soda बनाएंगे हम. बेकिंग सोडा बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, पर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज केस स्टडी के मैक्सिमम क्वेश्चन बेकिंग सोडा के ऊपर आते हैं. कैसे बनेगा ये? वी आर गोइंग टू यूज हियर NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NH3. Using all these compounds, we are going to make NaHCO3 plus NH4Cl. ये हमें, ये एक sublime substance है. It is going to evaporate. This is what we wanted. This is baking soda. Baking soda. अब यही baking soda का दूसरा नाम क्या है? सोडियम bicarbonate. Sodium bicarbonate. Now this sodium bicarbonate is heftily used in bakery items, cakes, breads, कुछ भी ऐसी चीज जिसमें हमें थोड़ी फ्लफीनेस लानी होती है, we use baking soda. बेकिंग सोडा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जैसे ही बेकिंग सोडा डिकम्पोज होता है या गर्मी के मारे टूटता है, उस टाइम पे बेकिंग सोडा स्टार्ट्स रिलीजिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग योर केक्स फ्लफी एंड स्पॉन्जी. देखा है आपने कभी केक्स में छोटे छोटे छेद होते हैं अंदर से, अगर जब हम ब्रेड को नोटिस करते हैं तो. Why? Because when the cake was being formed, the sodium bicarbonate or the baking soda was getting decomposed, due to which it started releasing a lot of carbon dioxide. That carbon dioxide made those tiny holes and made the cake fluffy. अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है, your baking soda is actually bitter in taste. ये ना बहुत ही कड़वा होता है, इसीलिए इसकी क्वांटिटी ना बहुत ही देख के डालनी पड़ती है. We use very small quantity of बेकिंग सोडा. अगर ये थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाएगी क्वांटिटी, इट इज गोइंग टू मेक योर केक आल्सो टेस्ट बिटर. अब इस चक्कर में क्या होता है, वी नीड टू कन्वर्ट, नॉट ऑलवेज, वी नीड टू कन्वर्ट दिस बेकिंग सोडा इनटू बेकिंग पाउडर. अब बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करने की एक ट्रिक है. वी नीड टू न्यूट्रलाइज द टेस्ट. नाउ अब तक का पढ़ के आपको पता चल चुका होगा कि अगर बेसिस को, क्योंकि ये बिटर है, व्हाट इज इट? बेस. अगर बेसिस को हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हमें उसमें क्या डालना पड़ेगा? एसिड डालना पड़ेगा. नाउ टू न्यूट्रलाइज द टेस्ट, आई एम राइटिंग एवरीथिंग सो दैट इट इज क्लियर. टू न्यूट्रलाइज द बिटर टेस्ट, what are we going to do? We are going to take baking soda NaHCO3 plus tartaric acid. What do we use? Tartaric acid. फॉर्मूला बेकिंग पाउडर का सेम है, NaHCO3 which has now become as baking powder, and this baking powder has the same formula but a neutral taste. अब इस बेकिंग पाउडर का कोई टेस्ट नहीं है, इसको कितना ही डाल लो. तो इसी वजह से केक्स में क्या किया जाता है, 1 से 1.5 चम्मच के आसपास आराम से हम बेकिंग पाउडर डाल लेते हैं, उससे टेस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता. साथ में चुटकी भर बेकिंग सोडा भी डालेंगे, देन इट इज गोइंग टू मेक यू अ वेरी फ्लफी एंड स्पॉन्जी केक. ठीक है, अब वो कैसे बनता है हम डिकम्पोजिशन भी देख लेते हैं. अगर सपोज करो केक में हमने इसको डाल दिया, ठीक है, अब हम केक में डाल रहे हैं NaHCO3. अब केक को मैंने रख दिया अवन में. अवन में क्या होने वाला है? हीट होने वाला है अच्छी तरह. जैसे ही ये हीट होना स्टार्ट होएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
NaHCO3 is going to first give away carbon dioxide, a lot of carbon dioxide, and that carbon dioxide is going to make your cake fluffy. Second thing that we are going to get is water. And third thing that we are going to get is Na2CO3. This is our Na2CO3 क्या है हमारा? Sodium carbonate. Sodium carbonate. The main thing that we wanted here was this. जैसे ही डिकम्पोज होगा ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी and that ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड is going to make our cake fluffy. ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बेकिंग सोडा बनाने की कोशिश करी थी. सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया यूज करके वी फॉर्म्ड सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज अवर बेकिंग सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड. अब इस बेकिंग सोडा के बिटर टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए वी एडेड टार्टरिक एसिड टू इट, तो बेकिंग पाउडर बन गया. फिर जब हमने इस बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर को डाला केक में और हीट करना स्टार्ट किया, इट रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड विच मेड अवर केक फ्लफी. आई एम श्योर यहां तक क्लियर है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं. चलो, the next important compound that we are going to make here, the next important compound is washing soda. Washing soda कैसे बनेगा? Now, washing सोडा, ये सबसे इजीएस्ट इक्वेशन है आपके पूरे बुक की. ठीक है, Na2CO3 plus 10 water of crystallization is going to give us Na2CO3 dot 10H2O. क्या नाम है इसका? कॉमन नेम इज वॉशिंग सोडा एंड केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. डेका मतलब 10, डेकाहाइड्रेट. दिस इज वॉशिंग सोडा. नॉट माई पॉइंट. अब यहाँ पे वॉशिंग सोडा से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है कि नेम द कंपाउंड विच इज यूजफुल इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे निकलती है? परमानेंट हार्डनेस कैसे निकलेगी? जैसे ही हम वॉशिंग सोडा को वाटर में ऐड कर देंगे या सोडियम कार्बोनेट को वाटर में ऐड कर देंगे, इंस्टेंटली हार्डनेस रिमूव हो जाएगी. अब इससे रिलेटेड ना बहुत बार प्री बोर्ड्स के आसपास या हाफ ईयरली में आपके पास ये क्वेश्चन जरूर आएगा, गिव इक्वेशन हाउ हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड. अब वो गिव इक्वेशन कैसे करोगे आप? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर. ध्यान से सुनिए. हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब है कि पानी के अंदर कुछ ऐसे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के, जो कि पानी को खारा बनाते हैं. ये जो सॉल्ट्स होते हैं यही रीजन है पानी के हार्डनेस की, जिसकी वजह से वाटर हमारी बॉडी में भी नुकसान कर सकता है, क्लीनिंग प्रोसेसेस में भी नुकसान कर सकता है, एंड इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है, सो हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने की एक इक्वेशन मैं आपको बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, द वाटर कंटेन्स MgCl2. मैग्नीशियम क्लोराइड है पानी के अंदर जो कि पानी को हार्ड बना रहा है. ये वही हार्डनेस है जिसकी वजह से आपके टैप्स वगैरह के ऊपर व्हाइट व्हाइट निशान आ जाते हैं. व्हाट इज दैट व्हाइट निशान? दैट इज सॉल्ट इन द वाटर. MgCl2 में Na2CO3 डाल दो, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस. क्या बन जाएगा? NaCl plus MgCO3. This MgCO3 is going to become a precipitate which is going to settle down हो जाएगा ये, and it will not hamper the quality of water. So to remove this hardness we have to combine it with sodium carbonate, which is going to make us sodium chloride and magnesium carbonate. Magnesium carbonate is going to become a precipitate and settle down. It will not harm the quality of water now. Clear till here? चलो, इसको मैं हटा रही हूँ बीच में से. अगर नोट डाउन करना है हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. what do we use for removing permanent hardness of water? Sodium carbonate. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे. वॉशिंग सोडा इज डन. लास्ट इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम. फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम. अब यहाँ पे ना दो कंफ्यूजिंग चीजें आएंगी. ये वाली चीज बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज में. सो वी आर गोइंग टू सी टू थिंग्स, पीओपी एंड जिप्सम. पीओपी क्या होता है? आप लोगों ने कट्टे देखे जिससे जो लाते हैं घर में, व्हाइट कलर का होता है, उसमें पानी डालते हैं और फिर दीवारों पर एस्थेटिकली डिजाइन बनाते हैं उसके. दैट इज कॉल्ड पीओपी.
अब वो पीओपी क्या होता है, वो ड्राई होता है। जो चीज ड्राई है दैट मीन्स उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कम है, जो चीज वेट है उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। सो जिप्सम और पीओपी में एक ही अंतर है, पीओपी इज ड्राई, जिप्सम इज वेट फॉर्म। ठीक है, कैसे? पीओपी का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब इसका क्या नाम होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मीन्स हाफ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दिस इज अवर पीओपी। ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लीज, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में मैं ऐड करने वाली हूं 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। ऐड करते अब ये क्या बनाने वाला है, दिस इज गोइंग टू मेक अ CaSO4 डॉट 2H2O, है ना, हाफ प्लस 1.5 2H2O। अब ये क्या बन गया, दिस इज अवर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट and common name is gypsum. This is our gypsum. अब अगर इस प्रोसेस को रिवर्स कर दो कि भाई जिप्सम से पीओपी बनाना है तो कैसे होगा, इसको हीट करना शुरू कर देना। जैसे ही इसे हीट करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O एंड 1.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम फ्रॉम पीओपी। पीओपी से जिप्सम, जिप्सम से पीओपी, कुछ भी कर लो, द इक्वेशन इज गोइंग टू जस्ट गेट रिवर्स लाइक दिस। बस इतना याद रखना है कि पीओपी सूखा वाला होता है तो उसमें सिर्फ हाफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल, हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। अगर आपका वेट वाला है जिसमें पानी मिक्स हो चुका है तो उसके अंदर 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज पीओपी, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज जिप्सम। Can we remember this thing? I am sure this was easy. Only if you have noted down all the things and some uses also you should be knowing very carefully. आपके दिमाग में इसके uses आराम से होने चाहिए कि पीओपी को किस लिए यूज करते हैं, वॉल मोल्डिंग्स बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, हॉस्पिटल में यूज करते हैं प्लास्टर्स लगाने के लिए फ्रैक्चर्ड बोन्स के ऊपर। So these are all some easy concepts. In the next class, what I'm going to start is, firstly I'm going to give you 5 very important case study questions related to this chapter and these concepts specifically. ठीक है, so अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मुझे जरूर बताना आपको कैसी लगी, एंड आई एम श्योर ये सब आपको समझने में आसान रहे होंगे। बाय।